Real people come from there. Действительно, реальные люди приходят оттуда. Lord Krishna appeared on this planet 5,000 years ago. И Господь Кришна явился на этой планете 5000 лет назад. Lord Buddha appeared 2,500 years ago. И Господь Будда явился 2500 лет тому назад. Lord Jesus, the Son of God, he appeared 2,000 years ago. И Иисус Христос, Он приходил 2000 лет назад. Muhammad appeared 1,500 years ago. И Мухаммед 15. But we have these beads. Но на самом деле этот мешочек создан для четок. There's 108 wooden beads from India. На них находятся 108 бусин, они из Индии. And on each bead, we sing, we chant names of God in the Sanskrit language of India. И на каждой бусине мы повторяем имена Бога на санскрите. Like this: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So you can say, no, this is an Eastern religion. It's, you know, Krishna's a Hindu god. This doesn't have anything to do with Russian culture. И вы можете сказать: о, ну это восточная философия, Кришна, он индийский бог, никакого отношения к нам он не имеет. Religion isn't east or west or north or south. Spirituality comes from the spiritual world. भगवान श्री कृष्ण इस प्लेनेट पर 5000 साल पहले आए। बुद्ध इस धरती पर 2500 साल पहले आए। भगवान के पुत्र कहे जाने वाले जीसस क्राइस्ट इस धरती पर 2000 साल पहले आए और इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद इस धरती पर केवल 1500 साल पहले आए। लेकिन मेरे हाथ में ये लकड़ी के मनकों की माला है जिसमें 108 मनके हैं और हम इस माला के हर एक मनके को भगवान श्री कृष्ण के नाम से भारत की संस्कृत भाषा में जपते हैं, यानी कि रटते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। परंतु आप ये मत सोचना कि ये एक भारतीय संस्कृति है और भगवान श्री कृष्ण एक हिंदू गॉड है जो रशियन कल्चर में कुछ लाभ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत की ही नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संस्कृति है जो दुनिया के हर एक मानव के लिए लाभदायक है। तो हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए इस 108 मनकों की माला के साथ। रशिया की इस सिटी में खुलेआम सनातन का ब्रह्म ज्ञान दिया है इन महान हिंदू सन्यासी के द्वारा, जिनका नाम है इंद्रद्युम्न स्वामी। इनके द्वारा बोले गए हर एक इंग्लिश वर्ड को इनके पास खड़ी एक रशियन लड़की के द्वारा रशियन भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया ताकि सभी रशियन इनके द्वारा दिए गए इस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाए। और रूस के इस शहर में सनातन की महिमा का एक अलौकिक तरीके से बखान करने के लिए इस महान संत ने यहाँ पर सबसे बड़ी और गहरी बात ये कही: And it's not something sentimental. It's based on a very deep philosophy. We study the ancient scriptures of India. И это не является умозрительными заключениями, это глубокая философия, которая пришла из Индии. And we follow a life of discipline. И мы живем очень строго, дисциплинированной жизнью. Nothing great is ever achieved in this world without practicing some discipline, some control of the mind and the senses. Потому что ничего в этом мире нельзя достичь без дисциплины, контроля чувств и ума. So these boys and girls, they all follow 4 regulative principles. Таким образом, все эти молодые люди, девушки и парни, они следуют 4 регулирующим принципам. They're strictly vegetarians. Они строгие вегетарианцы. They look pretty healthy, right? Они выглядят достаточно здоровыми. कि हम एक ऐसे गहरे अध्यात्म को फॉलो करते हैं जिसका उल्लेख भारत के अति प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है, जिसके माध्यम से हम एक अनुशासन भरा जीवन जीते हैं। और जो आप भारतीय वस्त्रों में ये लड़के और लड़कियां देख रहे हैं, ये सब भारत के उसी अध्यात्म के नियमों को फॉलो करते हैं और ये सब पूर्णतः शाकाहारी है। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं बल्कि ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर मात्र था। इनके स्पीच की पूरी पिक्चर तो आपको वीडियो में आगे दिखने वाली है कि कैसे रूस में इस हिंदू सन्यासी ने बहुत ही चतुराई से जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद के नवनिर्मित इतिहास के आगे सनातन की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति का बखान किया। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रूस में दिए गए इस हिंदू सन्यासी के इस पूरे स्पीच को,
जानेंगे कि आखिरकार कौन है ये इंद्रद्युम्न स्वामी जो अपने ब्रह्म ज्ञान से हजारों लाखों रशियंस की सनातन में घर वापसी करवा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जानेंगे कि रशिया में सनातन के लिए इनकी भविष्य की योजनाएं क्या है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Pretty healthy, right? Они выглядят достаточно здоровыми, не I'll так show ли? you our cook. Here's our cook. А кто у нас тут повар? Выходите сюда, товарищ повар. He's not a 90-pound weakling. He's a big boy. Он не 60 килограмм весит, он такой Because, сильный мальчик. He makes sure that he tries the food before he serves it. Потому что он всегда, у него есть правило попробовать еду перед тем, как раздавать So ее. he's a good boy. Он хороший. Give him a big round of applause, our cook. Поаплодируйте повару нашему. So we don't eat meat, fish, or eggs. И мы не едим мясо, рыбу, яйца. Oh, you must be very weak. О, наверное, вы такие слабенькие. No, what's the biggest animal in the world? А просто подумайте, какое самое сильное животное на The Земле? elephant. Это слон. What does the elephant eat? А что слон ест? Grass. Траву. What about the bull? А что насчет быка? He's vegetarian. Он тоже вегетарианец. If a mad bull was running down the street, all the big strong men would run in the stores afraid. Если сейчас сумасшедший бык пронесется здесь по улице, то все самые сильные и бесстрашные мужчины попрячутся по торговым точкам. So you don't have to eat meat to be strong. Поэтому нет необходимости кушать мясо для того, чтобы быть сильным. And because meat is procured by violence, if you eat it, you ingest that violence and that anger and frustration in your body and your consciousness as well. तो बेसिकली इस वीडियो में इंद्रद्युम्न स्वामी सनातन धर्म के प्रथम और मूल नियम को रशियन लोगों को अच्छे से समझाने के लिए और ये समझाने के लिए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं बल्कि सनातन धर्म में ही क्यों शाकाहार को प्राथमिकता दी गई है, इस चीज को समझाने के लिए ये यहीं पर खड़े एक हट्टे कट्टे रशियन लड़के को पकड़कर लाते हैं जिनकी पहले से ही सनातन धर्म में घर वापसी हुई होती है और इनके माध्यम से ये समझाते हैं कि आपके सामने ये एक अच्छा खासा आदमी है जो हमारा खाना बनाता है और ये पूर्णतः शाकाहारी है क्योंकि हम सब मीट नहीं खाते। और आप ये सोचते होंगे कि हम मीट के बिना बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा और तगड़ा जानवर हाथी है जो घास खाता है, लेकिन फिर भी इसमें बेशुमार ऊर्जा और बल होता है। और सेम ऐसी ही परिभाषा सांड की भी है जो केवल घास ही खाता है, लेकिन मांस खाने वाले हट्टे कट्टे इंसान को भी इनसे डर लगता है। और शाकाहार के बाद सनातन का दूसरा महानतम नियम इन्होंने ये बताया कि जिस पर हम सबको भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज के समय में। We don't gamble. Мы не играем в азартные игры. And we have sex, but only in marriage. И у нас дозволены сексуальные отношения, но только в браке. We have some big families, У нас, да, есть большие семьи. but we don't have sex outside of marriage because a lot of diseases come from that. There's a lot of unwanted children. A lot of children are killed in the womb. यानी कि इन्होंने कहा कि इट्स सेड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ सनातन धर्म दैट वन शुड नॉट हैव सेक्स बिफोर मैरिज। यानी कि इन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आगे सनातन के दूसरे नियमों की महानताओं की व्याख्या करते हुए ये बताया कि सनातन के प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें बीमारियों को जन्म देती हैं और इससे गर्भ में बहुत सारे बच्चे मरते हैं, इसलिए हम इन सब बेकार की चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। और जितने भी आप यहाँ पर ये भारतीय वस्त्रों में रशियन महिलाएं और पुरुष देख रहे हैं, ये सब भी सनातन के इसी नियम को खुशी खुशी फॉलो करते हैं। यानी कि शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने के समर्थन में ये सब रशियन को जागरूक कर रहे हैं और इसलिए इन सब रशियन भक्तों के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सब नियम केवल हिंदुओं और सनातन धर्म को फॉलो करने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। और दोस्तों, इन सारी बातों को इस लड़की ने रशियन में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट भी किया। तो इंद्रद्युम्न स्वामी का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था और इनका पहले का नाम ब्रायन टी बिट्स था, लेकिन बाद में ये भारत के महान संत श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए और संन्यास ले लिया। तब से पूरी दुनिया में ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
और रशिया में इनकी भविष्य की योजनाएं हैं कि रूस में ज्यादा से ज्यादा सनातन की कम्युनिटीज खड़ी करना और ज्यादा से ज्यादा रशियंस की भगवान श्री कृष्णा और भगवान श्री राम की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म में घर वापसी करवाना। तो हम सबका हृदय की गहराइयों से प्रणाम है इस महान संत को। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।